اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دو لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے، جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوں گے۔ اور آج ہم سنیں گے ہمارے ہندوستان کے بہت ہی مشہور خطیب حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، ان کی زبانی سے آج ہم سنیں گے بے نمازیوں کا انجام۔ تو چلیے ہم سب مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور آخر تک بنے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دو لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کس طریقے سے پسے گا، اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کہیں اور جاتی ہے، اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرف پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے، بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے، پھر سر پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں بتاؤ، اگر سر سے لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندیوں ذرا سوچو تو صحیح، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے، جب اسی سر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری
बहनों, दीनदार बनना है तो दीनदार बनने का सबसे पहला जीना नमाज है। अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो धीरे धीरे खुद ही अल्लाह के करीब हो जाओगी, दीन के करीब हो जाओगी। और मेरी बहनों, नमाज अगर नहीं पढ़ोगी तो आपने अजाब की एक शक्ल सुनी है, उसके बाद में आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बल्कि एक शक्ल बताई गई कि बेनमाजी को मरते वक्त अल्लाह इतना प्यासा कर देता है, इतना प्यासा कर देता है कि अल्लाह अकबर, कि अगर उसके हलक के अंदर 7 समुंदरों का पानी भी निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। मेरी बहनों बताओ, 10 मिनट किसको कहते हैं? अगर इंसान मुंह में पान रखे तो पान भी इंसान 10 मिनट में नहीं चबाता, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है, खाना खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। अपने आप पर रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। अगर अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाकर जन्नत की राह का मुसाफिर बनाना है तो आज ये अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगी। मेरी बहनों याद रखो। और आइए, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने एक रिवायत नकल की है, अब उसको जरा धड़कते हुए दिल से सुन ले। बेनमाजी का अंजाम क्या है, फिर हम दूसरे फराइज की तरफ चलेंगे ताकि आपको उसकी भी अहमियत पता चले। अल्लाह अकबर, दौरे रिसालत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा झुरमुट किए बैठे हुए हैं। इतने में एक जवान रोते हुए आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, हुजूर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे आका की आदत थी, जिसको भी रोते हुए देखा आका बेचैन हो जाते, सरकार बेकरार हो जाते। उस जवान को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए जवान क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आज मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरा बाबा मर गया है आका, मगर हम देहाती लोग हैं, हम देहात में रहते हैं और हमारे यहाँ मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला मिल रहा है, ना कोई कफन पहनाने वाला मिल रहा है, ना कोई नमाजे जनाजा पढ़ने वाला मिल रहा है। इतना सुनना था, आका को उस पर रहम आ गया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूरी महफिल पे नजर डाली। तो महफिल पे नजर डालने के बाद मेरे आका ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों उठो, जाओ और उस देहात में पहुंचो और पहुंच करके उसके बाप को गुस्ल दो, उसको कफन अपने हाथ से पहनाओ और उसकी नमाजे जनाजा पढ़ो। देखो, ये सहाबा के सरदार है, शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम। अभी वली नहीं, वलियों से बड़ा मकाम, वलियों से बड़ा मर्तबा, गौस कुतुब और अब्दाल कलंदर से बड़ा मर्तबा इन लोगों का है। आका ने उनको फरमाया, वो दोनों चले। जैसे ही देहात में पहुंचे, पहुंचने के बाद उसके बाप की मैयत पर चादर पड़ी हुई थी। दोनों ने गुस्ल देने के लिए जैसे ही चादर हटाया तो दोनों की चीख निकल गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? इसलिए कि जैसे ही चादर हटाया तो क्या देखा, जिस्म तो पूरा इंसानों की तरह था मगर मुंह काले सुअर की तरह हो गया था, मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसा मुहद्दिस अपनी किताब में लिख रहा है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने देखा कि मुंह सुअर की तरह हो गया, वो भी काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। दोनों रो पड़े, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से माफियत का सवाल करते हैं। चूंकि वो रसूलुल्लाह का जाहिरी दौर था तो अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी। अब तो ये निशानी दिख भी नहीं सकती क्योंकि अब जो कुछ होता है वो कब्र के अंदर होता है। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं, हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह अकबर, एक कासिद भेजा गया, या रसूल अल्लाह, इसका मुंह तो काले सुअर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दे, इसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़े, इसको कफन कैसे पहनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए और आने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा कि चेहरा उसका सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। आका भी रो पड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह इसका चेहरा दुरुस्त कर दे मौला। अल्लाह ने उसका चेहरा दुरुस्त कर दिया। जल्दी से सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद किसी ने चुप
झुटके से कहा, पहले तो मुंह इसका सुअर का हो गया था, हुजूर की दुआ से अच्छा हुआ, अब नमाज जनाजा के बाद चेक तो कर लो, देख तो लो कि मुंह कैसा है। जब नमाज जनाजा के बाद चेहरा देखा गया तो कफन के अंदर फिर से चेहरा काले सुअर की तरह था, काले खंजीर की तरह था। वापस से चेहरा बदल गया। हुजूर अलैहि सलाम भी रो पड़े, सारे सहाबा रो पड़े। मेरी बहनों सोचो तो सही, अल्लाह ना करे जनाजे में किसी का मुंह काले सुअर की तरह होना तो दूर की बात है, अगर जनाजे में किसी का मुंह सिर्फ काला हो जाए तो उस वक्त तो लोगों के दरमियान कितनी रुसवाई होगी, कितनी जिल्लत होगी। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग दुआ किया करते थे, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं, एक बुजुर्ग दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां कोई मेरा पहचानने वाला ना हो, कोई मेरे पहचान का ना हो। लोगों ने पूछा, हजरत ये भी कोई दुआ हुई कि अल्लाह ऐसी जगह मौत देना जहां कोई पहचान का ना हो? फरमाते, मुझे डर लगता है मरने के बाद अगर गुनाह की वजह से मेरा चेहरा बदल गया, मेरा चेहरा तब्दील हो गया, तो उस वक्त मेरी रुसवाई का हाल क्या होगा, उस वक्त मेरी जिल्लत का हाल क्या होगा। आज इंसान तरह तरह के क्रीम मलकर चेहरों को खूबसूरत बनाता है, आज इंसान महंगे से महंगे साबुन इस्तेमाल करके चेहरे को खूबसूरत बनाता है, आज इंसान चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करता है। मगर कुरान कहता है क़यामत के दिन चेहरे आमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। चेहरे क़यामत के दिन आमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, सिया हो जाएंगे, मस्क हो जाएंगे, और जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकेंगे। हमें नहीं पता हमारे अमाल कैसे हैं, बल्कि हम तो जानते हैं हमने तो गुनाह के सिवा कुछ किया ही नहीं। क्या होगा अपने चेहरों के साथ, क्या होगा? अल्लाह अकबर। अगर चेहरे पे फुंसी निकल जाए, हम महफिलों में शरीक नहीं होते। अगर चेहरे पर कोई दाग आ जाए, हम लोगों के दरमियान नहीं जाते। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, उस शख्स का चेहरा जनाजे में सुअर की तरह हो गया, काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। सब सहाबा रो पड़े और उसके बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा क्यों सुअर की तरह हो गया है? आका बार बार इसका चेहरा क्यों बदल जाता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद कुछ इरशाद भी फरमाया, बल्कि उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद फरमाया, तू बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को रुसवा नहीं करता, किसी को जलील नहीं करता। तेरा बाप यकीनन कुछ न कुछ बड़ा जुर्म करता होगा, बता तेरा बाप करता क्या था जिसकी वजह से इसका चेहरा बार बार सुअर की तरह होता है? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप हर नेकी करता था, हर नेक अमल करता था, मगर नमाज के वक्त तो सो जाता था, वो नमाज की अहमियत नहीं जानता था, वो नमाज की कदर नहीं करता था। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब कोई नमाज में सुस्ती करेगा, नमाज की नाकदरी करेगा, और जब वो मर जाएगा तो कयामत के दिन वो काले सुअर का मुंह लेकर के उठेगा, काले खिंजीर का मुंह लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, जरा गौर करो, आज बहुत सादगी से तुम कह देती हो कि हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ये झूठ है मेरी बहनों, ये फरेब है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? जब हमें खाने के लिए टाइम मिलता है, सोने के लिए टाइम मिलता है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए टाइम मिलता है, बल्कि लोगों को गीबत करने के लिए टाइम मिलता है, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? आपको अहद करना होगा, आपको तय करना होगा। याद रखना, कोई कब्र में नहीं आने वाला, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई मदद करने नहीं आने वाला सिवाय आमिना के लाल के। और उन्होंने भी फरमा दिया, जो नमाज छोड़ दे उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप का भला चाहो, अपने आप का भला चाहो, अपने आप की खैर खाई करो, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालो, 10 मिनट का टाइम निकालो और नमाज पढ़ो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी बहनों तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे बगैर बोले नमाज पढ़ेंगे। आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा। माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए नमाज की तरफ आओ, बहुत बरकतें हैं नमाज की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ते, कितनी बड़ी अजाब है उनके लिए। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, आप ज़रूर समझ गए होंगे, आप ज़रूर नमाज की पाबंदी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें
اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماتھا، اپنے پیشانی کو جھکائے، ضرور اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو دوستو آپ ضرور نماز پڑھنے کی پابندی بنائے۔ اللہ حافظ۔